مدت بعد میری ملاقات اپنے کلاس فیلو جمشید سے ہوئی۔ وہ ایک منچلا اور دل پھینک نوجوان تھا، لیکن خدا نے اس میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جس سے بات کرتا دل مو لیتا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا اور ہم ایک ایسے پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں قطار در قطار بنگلے بنے ہوئے تھے۔ سامنے جمشید کے والد کا مکان تھا اور ہمارے برابر میں شرمین کا گھر تھا۔ شرمین کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے میری دوستی تھی، تاہم بلا سبب میں اس کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ 2 ماہ قبل یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ ایک دن جمشید سیڑھیاں اتر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ہمارے برابر والے بنگلے کی ایک کھلی کھڑکی پر پڑی۔ سامنے ہی شرمین کا کمرہ تھا۔ وہ مسہری پر نیم دراز اپنے قلم سے کچھ تحریر کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جمشید شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس نازنین کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ دراصل وہ اپنے چچا کے گھر مری میں 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر آیا تھا۔ اسی محفیت میں اپنے گھر کی سیڑھیوں پر ایک بت کی طرح استادہ تھا کہ اس نازنین کو محسوس ہوا کہ کوئی محویت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ چہرہ اوپر اٹھانے سے اس کے حسن کا پورا چاند جمشید کی نگاہ میں نور کی چکا چوند برسا گیا۔ خوبصورت نقوش کے ساتھ سیاہ لمبی زلفیں کمر تک پھیلی ہوئی تھیں، موزوں قامت اور چھریرا بدن، غرض کہ اس کا وجود انتہائی دلکش تھا۔ وہ اس لمحے پہچان نہ سکا کہ یہ لوگ اس کے پرانے والے مکان کے برابر رہا کرتے تھے۔ تقریباً 10 سال پہلے جمشید بھول گیا کہ باہر کس کام سے جا رہا تھا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی الماری کھول کر پرانی البم نکالی اور شرمین کی 10 سال قبل والی تصویر ڈھونڈ کر غور سے دیکھنے لگا۔ سوچا کہ کہیں نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا گئی، یہ وہی ہے جس کی سالگرہ پر اس نے یہ تصویر بنائی تھی یا کوئی اور ہے۔ ان دنوں وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے کبھی شرمین یا اس کے گھر والوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ عرصہ سے واقفیت کے سبب اس کا جی چاہا کہ جا کر شرمین کی والدہ سے ملے، جن کو وہ آنٹی نشاط کہا کرتا تھا۔ ان سے ملنا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ شرمین کی شادی ہو چکی ہو اور وہ اپنے والدین کے بجائے شوہر کے ہمراہ رہتی ہو۔ وہ بچپن سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کی صورت اسے اچھی لگتی تھی۔ یہ پسندیدگی خیالات کی پاکیزگی تک تھی۔ وہ ایک کم سن لڑکا تھا اور شرمین بھی ایک معصوم لڑکی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے گھر جاتے اور باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگ اس بات کو برا نہیں جانتے تھے۔ اب جمشید کے سامنے ایک سوال تھا کہ اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ وہ شرمین سے ملنے اور بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس جذبے کو نہیں پہچان پا رہا تھا کہ آیا یہ محبت تھی یا پرانی جان پہچان کی کشش۔ اب وہ سامنے والے گھر میں تھی تو قریب ہی تھی۔ وہ دن اس نے اضطراب میں کاٹا۔ دوسرے روز پھر سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ شرمین کھڑکی میں نظر آ گئی اور اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مسکراہٹ کچھ ایسی تھی جیسے کہتی ہو کہ میں تمہارے چکر میں آنے والی نہیں ہوں۔ ندامت کے احساس سے وہ بجھ سا گیا۔ سوچا کہ یہ وہی شرمین ہے یا اسے ملتی جلتی صورت والی کوئی اور لڑکی، مگر وہ یہ سوال کس سے پوچھتا؟ مجھ سے پوچھنا چاہا، مگر میں نے اس کے سوال کو ہنسی میں اڑا دیا کہ پڑوس کی لڑکیوں سے دوستی کا یہ بہانہ تمہارا اچھا ہے، اپنی راہ لو۔ وہ خسیانہ ہو کر چلا گیا اور دوبارہ مجھے فون نہیں کیا۔ 1 ہفتہ یوں ہی اضطراب میں گزر گیا۔ جمشید کوئی کام نہ کر پا رہا تھا۔ اس کے اور شرمین کے درمیان فاصلہ جوں کا توں تھا۔ وہ اس الجھن سے ہر صورت نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت غیر فطری نہ تھی۔ یہ صورت جو اس کے دل پر اثر کر گئی تھی اس لیے بھی زیادہ اہم تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ اب وہ کافی بدل گیا تھا۔ دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے خاموش رہنے لگا۔ مجھے لگا اگر یہ وہی شرمین نہ تھی تب بھی وہ اس کو چاہنے لگا تھا۔ جمشید نے مجھ سے 2 بار شرمین کی بابت پوچھا۔ اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنی والدہ کو بھیج کر ان کے گھر سے حالات معلوم کر لو۔ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ دراصل میں شرمین کے بارے سے مزید بات چیت نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھ کو جمشید پر بھروسہ نہ تھا۔ احتیاط کا یہی تقاضا تھا کہ اس معاملے میں درمیان میں نہ آؤں کہ ہمارا بھی پڑوس کا معاملہ تھا۔ ایک بار شرمین کا بوڑھا ملازم گیٹ پر مل گیا۔ جمشید نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے؟ نہ جانے وہ کیا سمجھا اور جمشید کو حقارت سے گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک دن میں خالہ کے گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ وہ مجھے گلی میں مل گیا اور پوچھا تم نے شرمین کے بارے نہیں بتایا؟ میں نے تو اس کے گھر سے کبھی کسی کو نکلتے یا اندر جاتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا اس کا شوہر کہیں باہر رہتا ہے؟ میں زیادہ اس کے بارے نہیں جانتی۔ وہ نئے لوگ ہیں، ہمارا آنا جانا بس سلام دعا تک تھا۔ آخر تم کو اس لڑکی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو میں اس کا خیال چھوڑ دوں گا
क्योंकि मैं किसी की इज़्दवाजी ज़िंदगी बर्बाद करने का कायल नहीं। लेकिन अगर ये गैर शादीशुदा है तो इससे उल्फत का रिश्ता इस्तवार करने से पहले मैं इसके इरादे से वाकफियत हासिल करना चाहता था। मैं बेचारे जमशेद के ख्वाबों बारे सोचकर मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल था कि बहुत जल्द इसको शर्मीन के गिराने से मुतारफ़ होने में कामयाबी हो जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। इस तलखी ने इसकी अच्छी भली खुशगवार ज़िंदगी में जहर घोल दिया। वो इसके जज्बात से भी वाकिफ़ नहीं था। वो कभी कभी इसे देखती और मुस्कुरा देती और कभी तगाफुल से काम लेती, देखकर आंखें चुरा लेती और तजाहल आरिफाना बरतने लगती। जमशेद के जज्बात ऐसे थे कि ना बाग हाथ में थी ना पाँव रकाब में। शर्मीन के हुस्न का जादू इसके असाब पर सवार हो गया। वो कहीं आती जाती ना थी, तमाम वक्त घर में रहती। हर शाम खुद को कद आदम आईने के सामने खड़ी होकर संवारती थी, शादीशुदा औरतों की मानंद संगार करती, फिर अपने सजे हुए सरापे का जायज़ा लेती, लेकिन तैयार होकर जाती कहीं ना थी। बस खिड़की में आकर बाग में झांकती रहती थी, जैसे इसके मन का मालिक किसी बाग में कहीं छुपा बैठा हो। इसने जमशेद को कोई हल्का सा इशारा भी नहीं किया था कि वो इसको मुखातब करने की जुर्रत कर गुजरता। 2 माह वो यूं ही परेशान रहा था। हम शर्मीन के सैंडलों के खतरे का रन उससे मुखातिब ना हुआ और दबका रहा, और आज खुद आवाज़ देकर इसकी तवज्जो पाने की कोशिश नहीं की। इसने बिलवास्ता इजहार के सारे इरादे तर्क किए रखे। तभी वो भी मायूस हो गई। एक हसीन शाम जबकि वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो इसने खिड़की में आकर अपनी कलाइयों में पड़ी चूड़ियाँ खनकाईं। वो हमतन शर्मीन की जानिब मतवज्जा हो गया। तभी एक पर्ची जो कागज़ के टुकड़े में लिपटी हुई थी इसके सामने आ गिरी। तो वो गोली उठा ली, इस पर लिपटा हुआ कागज़ खोला। लिखा था, रात 8 बजे इन सीढ़ियों पर मुलाकात होगी, फ़कत शीन। इसने इस कागज़ के टुकड़े को जेब में महफूज कर लिया और अपने कमरे में आ गया। आज इसकी सोच के दायरे खुशगवार सिमत में मुड़ चुके थे। गोया शर्मीन को मेरे जज्बात का इल्म है, वो मेरे हाल से वाकिफ़ है, तो ये बनाव सिंगार वाकई मेरे लिए था। इसने मुझे फ़ोन पर बताया। इस नन्ही मुन्नी तहरीर ने बेचारे जमशेद की कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। अब उसे अगली रात का शिद्दत से इंतज़ार था। दूसरी शाम आ गई। शर्मीन के ख्यालों में गुम उम्दा लिबास ज़ेबतन करके इसने आईने में अपना जायज़ा लिया और बन संवर कर जब अपने कमरे से निकला तो रात के 8 बज रहे थे। अंधेरी रात थी। वो सीढ़ियाँ उतरा, सामने गेट का दरवाज़ा खुल गया। वो अपने गेट से निकलकर तेज़ी से जमशेद के सहन में आ गई और इसकी सीढ़ियों से ऊपर गई, इस जगह जहाँ वो खड़े होकर इसकी खिड़की से उसे देखा करता था। वो सुर्ख रंग के लिबास में थी। इसने खुद को इतना सजाया था कि सच की अरूस लग रही थी। इसके लिबास में लगी खुशबू इतनी तेज़ थी कि हमारे घर तक आ रही थी, जैसे सारा जहां महक गया हो। मदम रोशनी में वो बातें कर रहे थे और मैं छत से इनको देख रही थी। आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि दूरी और गुर्बत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। दूरी आग और गुर्बत ठंडक थी। वो इसको पाकर अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। वो एक भटका हुआ मुसाफिर था। शर्मीन इसकी मंजिल थी। दोनों देर तक साथ रहे। इसके बाद ऐसे लम्हात बार बार आए जब सारी दूरियां मिट गई और इसकी बेचैन रूह को करार आ गया। ये सिलसिला 3 माह तक चला। फिर गांव से जमशेद के वालिदैन लौट आए। वो इसे लेने आए थे कि इसकी शादी कर देना चाहते थे। उन्होंने गांव में एक कमसिन घरेलू लड़की जो इनकी रिश्तेदार थी पसंद कर ली थी और चाहते थे कि जमशेद भी एक नज़र हिना को देख ले ताकि वो इसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दे। माँ बाप के इसरार पर इसे जाना ही पड़ा। बोली बाली हिना इसको बेहद अच्छी लगी। मासूम, कमसिन और शर्माई सी इस पाकीज़ा सिर्फ दोशीज़ा ने इसके दिल में घर कर लिया। माँ से कहा, मुझे हिना से शादी पर कोई एतराज़ नहीं। गांव से आकर इसने सोचा, अभी तक मैंने शर्मीन की निजी ज़िंदगी के बारे सवाल नहीं किया, जबकि मैं तन्हा ज़िंदगी के अहम फैसले नहीं कर सकता। लिहाजा इसने शर्मीन से सवाल किया कि मुझे बताओ अपने गुजरे दिनों की बाबत। वालिद वफ़ात पा गए थे, माँ बीमार है, भाई इसे अमेरिका ले गए हैं। मैं पुराने मुलाजम बाबा शादाब के हमरा रहती हूँ। इसकी बीवी कभी यहाँ आ जाती है और कभी गांव अपने बच्चों के पास चली जाती है। आजकल अम्मा साबरा गांव गई हुई हैं। इसकी बेटी की लड़की पैदा हुई है, कुछ दिनों बाद आ जाएंगी। तुम्हारी मंगनी हो गई क्या? ये बड़ा अहम सवाल था। अब इस गुथली को सुलझाना लाजम था। तब शर्मीन ने तफसील से बताया कि मंगनी नहीं, मेरा निकाह हो चुका है। वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में मेरा निकाह टेलीफोन पर अपने भतीजे फरहान से करवा गए थे जो अमेरिका में रहता है। निकाह को 5 बरस हो चुके हैं मगर वो अभी तक नहीं आया है। वालिद साहब मेरे निकाह के 1-2 बरस बाद तक जिए। वो इसको आने का कहते तो फरहान टाल मटोल से काम लेता था। बाद में वालदा से भी टाल मटोल करता रहा। अब भाई के पास अम्मी गई हैं, देखो क्या होता है। 5 बरस मैंने इंतज़ार किया है, अब और नहीं कर सकती। अब तो हर सूरत तलाक लूँगी। मुझे लगता है कि खुद ब खुद वो तलाक के कागजात किसी रोज़ भिजवा देगा, क्योंकि वो भी शादी कर चुका होगा।
चाची भी वहाँ है मगर महर बेलब हैं। न जाने क्या मामला है। जमशेद ने कहा, शर्मीन तुमने बुरा किया, मुझे पहले बताया होता कि तुम शादीशुदा हो तो मैं तुमसे यूं कभी ना मिलता। वो बोली, टेलीफोन का निकाह भी कोई निकाह होता है? इसके बावजूद मैंने 5 वर्ष तो इंतज़ार किया, और कितना करूँगी? मुझको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? ठीक है मगर निकाह तो निकाह होता है। जब इतना इंतज़ार किया थोड़ा सा और भी कर लेती। अपनी वालिदा को तो आने देती कि क्या जवाब लाती हैं। तुम्हारी चाची से तो वो बात करेंगी ही। अब एक दिन भी और मुझसे इंतज़ार नहीं हो सकता। चंद माह तो बड़ी बात है। अब तुम मिल गए हो तो अब तुम ही मेरी मंजिल हो। इस जवाब से जमशेद बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो सख्त शशोपंज में था कि माँ का फ़ोन मिला, मैंने तुम्हारी शादी की तारीख रख दी है, फ़लाँ दिन पहुँच जाओ। वो घबराया, शर्मीन से कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था। इधर माँ मुंतज़िर थी जिसका बेटे पर बहुत हक था। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने फैसला कर लिया कि माँ को मायूस नहीं करना चाहिए, गांव जाना ही चाहिए। दूसरी शाम वो बाई से मिलने हमारे घर आया और मुझसे कहने लगा, गांव जा रहा हूँ, माँ ने शादी की तारीख ठहरा दी है, पता नहीं शर्मीन को फरामोश भी कर सकूँगा या नहीं। तभी नज़र अपने घर की जानब की जहाँ शर्मीन खिड़की में मौजूद थी। इसने इशारा किया कि वो रात को इससे मिलने आएगी। रात के 8 बजे मैं अपने कमरे की खिड़की में हवा लेने आई। मैंने देखा इसके घर शर्मीन आ गई थी। वो एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। थोड़ी देर पहले इसको फरामोश कर देने के बारे में मुझसे बात कर रहा था, इससे शादी से माजरत की बात कर रहा था, लेकिन अब इसके सामने ऐसी बात करने की हिम्मत ना थी। वो इसके साथ सर्दमुहरी से बात ना कर पा रहा था। वो बेहद उदास और चुप चुप था। शर्मीन की मीठी बातें इसकी कोई आवाज़ और इसके कानों में ना पहुंच पा रही थी। तभी जमशेद की सर्दमुहरी उसे खुल गई। वो समझ गई कि जमशेद किसी गहरी सोच में है। इसने कहा, जो मसला है मुझे सच सच बता दो। उसे बताना ही पड़ा। ठीक है, कुछ दिनों कबल जब तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी का संदेशा लाई थी, तुम तब ही मुझको आगाह कर देते। तुम उनकी खुशी पूरी करो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ। शर्मीन के ये कहने पर जमशेद जो परेशान था पुरसकून हो गया और हल्का फुल्का होकर गांव चला गया। इसकी शादी हिना से हो गई। इसको वो हूर मिल गई जो सचमुच इसी की थी। शरीके हयात को पाकर इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसको कभी भी किसी से मोहब्बत ना थी। शादी के बाद जमशेद ने वो घर छोड़ दिया। बीवी के साथ वहाँ रहना मुनासिब ना जाना, जहाँ सामने शर्मीन का घर था, और दूसरे इलाके में फ़्लैट लेकर हिना के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। मुद्दत तक वो ना हमारे घर आया और ना मुलाकात की। हम समझे कि वो किसी दूसरे मुल्क चला गया है। कुछ अरसा बाद शर्मीन की वालदा इसके चाचा और चाची के हमरा अमेरिका से लौट कर आ गई। बेटा भी साथ था। फरहान ने अभी तक शादी ना की थी। इसने निकाह की लाज रख ली और अपनी मनकूहा को लेकर अमेरिका चला गया। शर्मीन की किस्मत अच्छी थी कि खुदा ने उसे मज़ीद भटकने से बचा लिया। शर्मीन को मंजिल मिल गई और जमशेद को भी। मैं सोचती हूँ कि इस जैसे नौजवान राह हयात से भटकने लगें तो थोड़ी सी शाउरी कोशिश से ख़ुद को संभाल सकते हैं कि इसी में इनके लिए फ़लाह का रास्ता मुज़म्मिर है। वो शादी करके घर बसा लें तो बहुत सी खराबियों से बच सकते हैं। ताहम जब अरसा बाद वो मिलने आया तो इसकी बातें सुनकर मैं शशदर रह गई। मैं कितना गलत सोच रही थी और इसने साफ साफ सच्ची बातें कह दी। मैंने पूछा, तुम्हारी बीवी के साथ कैसी बसर हो रही है? ज़िंदगी क्या शर्मीन के बगैर बेकैफ तो नहीं हो गई? मेरी बीवी मेरे दिल की रानी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। इसके साथ शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दवाजी ज़िंदगी और आज़ादाना मेल मुलाकात में बहुत फ़र्क है। दूर रहकर मोहब्बत में आहें भरना और बात है। जो शय हासिल हो जाती है अपनी कशिश खो देती है, जबकि निकाह के बाद अपनी जीवन साथी से पहली मुलाकात शर्फ़ ज़िंदगी है। अपनी दुल्हन ज़िंदगी बाद शराफत का पैकर और खलूस की ज़मानत साबित हो तो यही ज़िंदगी जन्नत है। इसके इन अल्फाज ने मुझे हैरत में डाल दिया। तो गोया वफ़ादार और नेको बाहया बीवी मर्द के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, यही बड़ा इनाम है। फिर भी मर्द अपनी अच्छी बीवियों की कदर नहीं करते और इधर उधर वो बहुत बदनसीब मर्द होते हैं। बड़ी बी, जमशेद ने जवाब दिया। मैं हंस दी। वो मुझे हमेशा मजाक में बड़ी बी कहा करता था क्योंकि मैं उसे अच्छा इंसान बनने की नसीहतें किया करती थी।